آغاز کرتے ہیں اہم خبر کے ساتھ۔ چیف جسٹس ثاقب نثار آج لاپتہ افراد سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر لاپتہ افراد کے لواحقین پہنچ گئے اور روتے ہوئے اپنوں کی واپسی کا مطالبہ کرتے رہے۔ سپریم کورٹ نے ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ سمیت ایجنسیز کے ریجنل سربراہان کو بھی طلب کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر لاپتہ افراد کے لواحقین پہنچ گئے ہیں۔ آج چیف جسٹس ثاقب نثار لاپتہ افراد سے متعلق از خود نوٹس کی سماعت کریں گے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کے باہر لاپتہ افراد کے لواحقین پہنچ گئے ہیں اور روتے ہوئے اپنوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ سمیت ایجنسی کے ریجنل سربراہان کو بھی طلب کر رکھا ہے۔ لاپتہ افراد کا پتہ کون کرے گا؟ کون سا قانون ہے؟ یہ ماں باپ کو کون سی سزا مل رہی ہے؟ چیف جسٹس آج عدالت لگائیں گے، سیکیورٹی سربراہان صورتحال بتائیں گے۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں ڈی جی رینجرز، آئی جی سندھ اور سیکیورٹی سربراہان پیش ہوں گے۔ سماعت سے قبل لاپتہ افراد کے اہل خانہ عدالت کے باہر پہنچ گئے، روتے ہوئے فریاد کی اپنوں سے ملا دو۔ میرے بھائی کو بازیاب کرائے، ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہمارا بھائی کہاں ہے۔ میرے ہسبینڈ جو ہے نا 25 جنوری کو جو ہے نا یہاں گئے تھے کام سے، واپس نہیں آئے۔ ان کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہے اور کیوں لے کے گئے ہیں۔ سماجی رہنما جبران ناصر بولے، ماورائے عدالت اب سندھ میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے۔ دو بنیادی ایشو، ماورائے عدالت قتل اور انفورسڈ اپیرنسز، اور وہی چیز اب ہم سندھ میں اور کے پی میں کر رہے ہیں۔ ہمیں خدا را اس کو روکنا ہے اور بند کرنا ہے۔ گزشتہ روز لاڑکانہ میں لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے انصاف کے لیے فریاد کی تھی۔ اس پر چیف جسٹس ثاقب نثار نے اس خود نوٹس لیا تھا۔ کراچی سپریم کورٹ رجسٹری میں لاپتہ افراد کیس کی سماعت کچھ دیر میں ہوگی اور چیف جسٹس ثاقب نثار سپریم کورٹ رجسٹری پہنچ گئے ہیں۔ لاپتہ افراد کے لواحقین بھی عدالت کے باہر کثیر تعداد میں جمع ہیں۔ آئی جی سندھ اور ڈی جی رینجرز سندھ بھی سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ چیف جسٹس نے لاپتہ افراد کیس میں ڈی جی رینجرز اور آئی جی سندھ کو بھی آج طلب کر رکھا تھا۔ نمائندہ ریو نیوز جنید شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جنید بتائے گا عدالتی کارروائی سے متعلق۔ جی بالکل، دیکھیے آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس آف پاکستان میاں ثاقب نثار لاپتہ افراد کے معاملے پر جو ہے وہ نوٹس لیا تھا اور اب سے کچھ دیر بعد جو ہے اس حوالے سے سماعت کی جائے گی۔ سماعت سے قبل ہی لاپتہ افراد کے اہل خانہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے باہر جمع ہو گئے، جبکہ لاپتہ افراد کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کیا گیا۔ اس دوران سیکیورٹی پر مامور جو ہے وہ پولیس افسران سے جو ہے وہ سلب کلامی بھی ہوئی لاپتہ افراد کے اہل خانہ کی۔ سیکیورٹی افسران نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی حدود میں آنے سے جو ہے وہ اہل خانہ کو روکا، جس پر جو ہے وہ طلب کلامی ہوئی۔ تاہم سیکیورٹی اداروں کی جانب سے جو ہے وہ لاپتہ افراد کو اندر آنے سے روک دیا اور یہ کہا گیا جب تک چیف جسٹس حکم نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے جنید شاہ، بہت شکریہ آپ کا۔ لسپیلا مکران کوسٹل ہائی وے پر بمبل کے قریب کار اور مسافر وین میں خوفناک تصادم ہوا۔ افسوسناک حادثے میں 3 افراد جاں بحق اور 22 شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو سول اسپتال اوتھل لایا گیا جہاں پر ڈاکٹرز ابھی ابتدائی طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ 10 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ نمائندہ نیوز منظور حسین ہمیں تازہ ترین اپڈیٹس دیں گے۔ جی آپ بتائیے گا ابھی اس کی کیا تفصیلات سامنے آ رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ ہب سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر کوسٹل ہائی وے ہے جہاں پر کار اور مسافر وین میں خوفناک تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 3 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 22 کے قریب افراد جو ہے زخمی ہو گئے ہیں، جن کو جو ہے ایدی ایمبولینسز اور پرائیویٹ گاڑیوں کے ذریعے اتل اور جام غلام قادر ہاسپٹل لایا گیا ہے۔ ایدی ذرائع کے مطابق اس وقت جو ہے 8 کی حالت جو ہے تشویشناک بتائی جاتی ہے، جن کو جو ہے طبی امداد کے بعد اتل اور ہب سے کراچی روانہ کر دیا جائے گا۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، مسافر وین جو ہے پسنی سے کراچی آ رہی تھی اور کار جو ہے ہب سے پسنی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں جو ہے کوسٹل ہائی وے پر آپس میں تصادم ہوا ہے۔ کار سوار میں 3 افراد جو ہے موقع پر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جی شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ادھر بھلوال میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد کو قتل کرنے والا مرکزی ملزم پکڑا گیا۔ پولیس کے مطابق مرکزی ملزم عامر مقتولہ ثنا کا شوہر ہے۔ دونوں نے 2 ماہ پہلے پسند کی شادی کی۔ ثنا کے اہل خانہ نے طلاق دینے کے لیے 2 دن کی مہلت دی، جس پر عامر نے رات کو فائرنگ کر کے بیوی ثنا اور ان کے والدین کی جان لے لی۔ ملزم عامر کو فائرنگ سے زخمی ہونے والے راشد کی نشاندہی پر گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔
और पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल होगा या नहीं, पेरिस में FATF के इजलास में फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से 25 अप्रैल को जमा कराई रिपोर्ट पर बहस कल होगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अगर हुकूमत पाकिस्तान के इकदामात से मुतमईन न हुआ तो पाकिस्तान का ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाएगा। कल होने वाले इजलास में ये फैसला होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में, कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल होगा या नहीं। और इस इजलास में पाकिस्तान की जानिब से 25 अप्रैल को जमा कराई गई रिपोर्ट पर बहस होगी। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में डाला जाए या नहीं, FATF अहम फैसला करेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के पेरिस इजलास में लिया जा रहा है पाकिस्तान की कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का जायजा। पाकिस्तान ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए क्या किरदार अदा किया। पाकिस्तान की वजारत खारजा और खजाना समेत दीगर हुक्काम कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करेंगे। FATF पाकिस्तानी इक़दामात से मुतमिन न हुआ तो नाम ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा और पाकिस्तान को अमल दरामद के लिए 1 साल का वक्त दिया जाएगा। FATF का इजलास 29 जून तक जारी रहेगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास आज से होगा। इजलास पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान की जानिब से 25 अप्रैल को जमा कराई गई रिपोर्ट पर बहस कल होगी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने या ना डालने के फैसले से मुतालिक इजलास के इख्तिताम पर आगाह किया जाएगा। अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया तो FATF की जानिब से आइंदा कलाए अमल दिया जाएगा। एक्शन प्लान के तहत पाकिस्तान को मजीद पाबंदियों से बचने के लिए एक्शन प्लान पर मनोयन अमल करना होगा। इस एक्शन प्लान पर FATF अक्टूबर में जारी होने वाले इजलास पर कारकर्दगी का जायजा लेगा। नुमाइंदा न्यूज़ अंस मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अंस, बताइएगा इस इजलास से मुतालिक पाकिस्तान की तैयारियां कैसी हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जानिब से तैयारियां तो बिल्कुल अपनी तरफ से उरूज पर ही थी और पाकिस्तान ने 27 पेज रिपोर्ट 25 अप्रैल को जमा कराई थी, लेकिन FATF की जानिब से इस रिपोर्ट को 22 मई के गैर रस्मी इजलास में जो कि बैंकॉक में हुआ था उसको गैर दखली बख्श करार दिया गया था। पाकिस्तान की जानिब से वज़ारत दाखिला, वज़ारत खारजा और वज़ारत खजाना के हुक्काम इस इजलास में शरीक हो रहे हैं। पाकिस्तान फाइनेंस बिल के ऊपर भी को भी पेश करेगा और मुख्तलिफ ममालिक से तजारती मुआहदे जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को कर्व करने के लिए किए गए हैं उनका भी हवाला देगा और उसका रेफरेंस देकर भी अपना केस प्लीड करने की कोशिश करेगा कि ये इक़दाम पाकिस्तान की जानिब से किए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की मावनत के हवाले से के पैसे को रोकने के लिए। ये इजलास कल होगा। आज से FATF का इजलास बाकायदा शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज FATF का वेलकम सेशन हुआ था। आज FATF के इजलास में सऊदी अरब और बहरीन के मुतालिक बहस की जाएगी। कल पाकिस्तान का रिव्यू होगा जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। पूरा दिन कल पाकिस्तान का रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू के इख्तिताम पर फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान को आया ग्रे लिस्ट पे डाला जाए या ना डाला जाए। इस फैसले से मुतालिक पाकिस्तान को 29 जून को आगाह किया जाएगा जब FATF का इजलास इख्तिताम पजीर होगा। अगर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पे डाला जाता है तो FATF पाकिस्तान को एक एक्शन प्लान देगा और उस एक्शन प्लान पर पाकिस्तान को उसी तरह अमल करना होगा जिस तरह दिया गया है। अगर कोई जरा सी भी कोताही की गई तो आइंदा होने वाले इजलास में जब रिव्यू होगा पाकिस्तान का अक्टूबर के अंदर तो खदशात ये हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ ब्लैक लिस्ट भी किया जा सकता है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान इससे पहले फरवरी 2012 के अंदर भी FATF की ग्रे लिस्ट पे जा चुका है और 2 साल तक FATF की ग्रे लिस्ट पर रह चुका है। उस वक्त पाकिस्तान के पास ऑप्शन बहुत कम थे और FATF का ये कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद नंबर 1267 जो सिक्योरिटी काउंसिल की है उसमें प्रोस्क्राइब लोग जो हैं जो कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान एक्शन नहीं ले रहा और अभी भी उनका यही कहना है कि पाकिस्तान ने अपनी तरफ से इक़दामात ऊपर बिल्कुल ठीक नहीं किए हैं जिसकी वजह से अब पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और के बारे मनी लॉन्ड्रिंग और कलअदम जमातों के हवाले से पाकिस्तान को अहम फैसले करना होंगे। बहुत शुक्रिया अंस मलिक। तुर्की में अगला हुक्मरान कौन होगा, तुर्क अवाम अपना फैसला सुनाने लगे। तुर्की में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। साबिक सदर रजब तैयब एर्दोगान और मुहर्रम अंजे में मुकाबला मुतवक्के है। तज्जिया निगारों के मुताबिक तैयब एर्दोगान की पोजीशन मुस्तहकम है। तुर्की में तैयब एर्दोगान की जीत सदारती निज़ाम की राह हमवार करेगी और मुहर्रम अंजे की जीत पार्लिमानी निज़ाम की वापसी का पेश खैमा होगी। तुर्की में इंतखाबी दंगल के लिए मैदान सज गया। सदारती और पार्लिमानी इंतखाब की 600 नशिस्तों के लिए पोलिंग का अमल शुरू हो गया।
तजिया निगारों का कहना है कि रजब तैयब एर्दोगान इंतखाबात के पहले मरहले में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तैयब एर्दोगान जो हैं उनकी पोजीशन काफी मुस्तहकम है इस वक्त, और कवी इम्कान यही है कि वो सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर लेंगे। तैयब एर्दोगान की उप पार्टी के 600 उम्मीदवार मैदान में होंगे, उनमें 167 खातीन उम्मीदवार हैं। राय आमा के जायजों के मुताबिक सदारती उम्मीदवारों में तैयब एर्दोगान मकबूलियत में पहले नंबर पर, अपोजिशन जमात रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के सदारती उम्मीदवार महरम अंजे दूसरे और गुड पार्टी के मिराल ऑक्शनर को तीसरे सदारती उम्मीदवार की हैसियत हासिल है। 600 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए 5 करोड़ 63 लाख अफराद तुर्की में हैं और 30 लाख से जायद ओवरसीज तुर्क वोट डालने के अहल करार पाए हैं। तुर्की की हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा, ये फैसला आज होगा। तुर्क अवाम वोट के जरिए आज अपना फैसला सुनाएंगे। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक तैयब एर्दोगान की पोजीशन इस वक्त मुस्तहकम है। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार फैसल अजीज। बहुत शुक्रिया फैसल आपके वक्त का। आप ये बताइएगा अभी क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं इस मरहले में जहाँ पर एक साथ इंतखाबात हो रहे हैं, सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात? देखिए अभी तो इलेक्शन वोटिंग अंडरवे है, तकरीबन 2-2.5 घंटे हो चुके हैं वोटिंग शुरू हुए, और 5 बजे जो लोकल टाइम है जब तक वोटिंग जारी रही। तो जो अभी तक सूरत हाल ज़ाहिर रिजल्ट का तो अभी तक कुछ पता नहीं, वो तो 8 बजे से पहले कुछ नहीं पता होंगे, लेकिन कल तक की जो सूरत हाल थी और जो तज्जिया है यहाँ पे वो यही है कि तैयब एर्दोगान की जीत के कवी इम्कानात मौजूद हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। अहम सवाल ये है कि क्या वो आज जो है 85% से ज्यादा वोट हासिल करके कामयाब हो जाएंगे या फिर ये सेकंड राउंड में जाएगा, क्योंकि अगर 50% वोट वो हासिल ना कर सके तो फिर 8 जुलाई को सेकंड राउंड भी होगा सदारती इंतखाबात का। तो ये बात इस वक्त सबसे ज्यादा अहम है। शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और अभी बात करेंगे पाकिस्तान में आम इंतखाबात की। करीब आते ही सियासी गहमा गहमी सर चढ़कर बोलने लगी है। सियासी जमातों ने छुट्टी के रोज भी सियासी इतवार बाजार सजा लिए। PTI मियां वाली में पावर शो का मुजाहरा करेगी तो मुत्तहिदा मजलिस अमल पेशावर में मैदान सजाएगी। अवामी नेशनल पार्टी बडबेर में ताकत का मुजाहरा करेगी। शहबाज शरीफ ने भी मत वालों का लहू गरमाने शहर कायद का रुख कर लिया। चौधरी निसार ने धमियाल और शाहिद खाकान अब्बासी ने पिंडी में पंडाल लगा लिया। इलेक्शन सर पर इंतखाबी मुहिम उरूज पर, आज फिर लगेगा सियासी इतवार बाजार। सियासी शिकारी करेंगे एक दूसरे पर वार। तहरीक इंसाफ मियां वाली में रंग जमाएगी। मुत्तहिदा मजलिस अमल पेशावर में मैदान सजाएगी। ANP बडबेर में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। शहबाज शरीफ भी मत वालों का जोश बढ़ाने कराची पहुंच गए। रावलपिंडी में होगा शाहिद खाकान अब्बासी का सियासी शो। दिन 30 और जलसे 120। कप्तान इंतखाबी मुहिम पर निकल पड़े हैं। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम का आज मियां वाली से आगाज होगा और आखिरी जलसा इस्लामाबाद में होगा। मियां वाली में पहले जलसे की PTI ने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रे। 30 दिन 120 जलसे, कप्तान इंतखाबी मुहिम पर निकल पड़े। साफ चली शफाफ चली तहरीक इंसाफ चली। तहरीक इंसाफ पहला जलसा आज मियां वाली में करेगी। स्टेज लग गया, पंडाल सज गया, होर्डिंग्स आवेजा। हॉकी स्टेडियम को जलसागाह में तब्दील कर दिया गया। एक दूजे का थामो हाथ, चलो चलो इमरान के साथ। खान शाम को खिलाड़ियों का लहू गरमाएंगे और बल्ले के निशान पर वोट की मुहिम चलाएंगे। मियां वाली से शुरू होने वाली इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम 23 जुलाई को इस्लामाबाद में होगा। 25 जुलाई को पाकिस्तानी अवाम कप्तान की किस्मत का फैसला सुनाएंगे। तहरीक इंसाफ ने तमाम हलकों से उम्मीदवार फाइनल कर लिए। टिकटों का हतमी ऐलान आज किए जाने का इम्कान है। 30 से 32 हलके सीट एडजस्टमेंट के तहत खाली रखे जाएंगे। रावलपिंडी में खिलाड़ी शेख रशीद को वोट देंगे, जबकि गुजरात में काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट होगी। 5वें रोज कप्तान की यकीन दहानी पर धरना खत्म हो गया। शेख रशीद ने इंतखाबी मुहिम पर निकलने से पहले तगड़ा नाश्ता किया और फिर मोटरसाइकिल पर गलियों में निकल पड़े। कहते हैं आखिरी 10 दिन साइकिल पर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। इलेक्शन में मुकाबला ड्रग डीलर से है, शिकस्त देकर ही दिखाएंगे। इंतखाबी मुहिम से पहले तगड़ा नाश्ता। नाश्ते पर हाथ साफ करके शेख रशीद इंतखाबी मुहिम पर निकल पड़े। मोटरसाइकिल पर गली गली जाएंगे।
शेख साहब ने बताया आखिरी 10 दिन साइकिल पर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे, सबसे राब्ता भी रहेगा, वजन भी कम हो जाएगा। शेख रशीद ने सियासी हरीफ को ड्रग डीलर और कब्जा ग्रुप करार दे दिया। कहते हैं पिंडी वालों को पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, जीत कर दिखाएंगे। बहुत पाश इलाका होगा, यहाँ अस्करियाँ हैं, यहाँ टेनकोर है, यहाँ एविएशन है। शेख रशीद का दावा है कि नवाज शरीफ को अवामी मुस्लिम लीग ने घर भेजा। इलेक्शन के बाद चौधरी निसार के आज़ाद उम्मीदवारों के लीडर बनने की पेशगोई भी कर दी। खबरों का सिलसिला जारी है, अब वक्त हुआ ब्रेक का। न्यूज़ के साथ रहिए। वेलकम बैक। बीमार इसहाक डार की लंदन की सड़कों पर सेहतमंद सरगर्मियां। पाकिस्तान की अदालतों से मफरूर इसहाक डार हर पेशी पर मेडिकल रिपोर्ट जमा कराते हैं कि वो शदीद बीमार हैं और उठ भी नहीं सकते। लेकिन पाकिस्तान के बीमार लंदन की सड़कों पर मटर गश्त करते नजर आते हैं। बेगम कुलसूम नवाज की तीमारदारी भी बाकायदगी से करते हैं, अलबत्ता मीडिया नुमाइंदों को देखकर कन्नी कतरा जाते हैं। शदीद बीमार हूं, उठकर भी नहीं जा सकता, ये वो प्ली है जो इसहाक डार की जानिब से पाकिस्तानी अदालतों में ली जाती है। लेकिन लंदन की सड़कों पर बीमार इसहाक डार मटर गश्त करते दिखाई देते हैं और मीडिया के नुमाइंदों को देखकर कन्नी कतरा जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ कल शहर कायद से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। शहबाज शरीफ मिफ्ताह इस्माइल और मुशाहिद हुसैन सैयद और कैसर शेख से मुलाकातें भी करेंगे। शहबाज शरीफ कराची में 2 दिन तक इंतखाबी मुहिम जारी रखेंगे। नुमाइंदा न्यूज़ जावेद बलोच में मजीद अपडेट करेंगे। जावेद बताएगा शहबाज शरीफ के स्केड्यूल के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो हैं वो कल कराची पहुंचेंगे, जहां पर उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करना है। मुख्तलिफ कर्नल मीटिंग से भी खिताब करेंगे और अवामी इज्तिमा भी होंगे और कैंपेन के लिए मुशाहिद खान और दीगर रहनुमाओं के साथ वो मुख्तलिफ इलाकों का दौरा भी करेंगे। 2 दिन का दौरा है शहबाज शरीफ का, जहाँ पर वो मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे और जो वोटर्स हैं, उनके जो कारकुन हैं, लीगी कारकुन कराची में, उनसे मिलकर उनके मसाइल भी सुनेंगे। 2 दिन का दौरा है, बड़ा अहम दौरा है शहबाज शरीफ का, जहाँ से वो अपने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके बाद फिर बाकी जो मुख्तलिफ इजला हैं वहाँ भी वो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, जावेद बलोच अपडेट कर रहे थे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अहम पार्टी रहनुमाओं को जरदारी हाउस इस्लामाबाद तलब कर लिया। साबिक सदर की जेर सदारत पार्टी का अहम इजलास आज शाम होगा। इजलास में आइंदा इंतखाबात की तैयारियों पर बातचीत होगी। साबिक सदर को इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। आसिफ अली जरदारी वस्ती पंजाब के उम्मीदवारों पर मशावरत भी करेंगे। मशावरत मुकम्मल होने पर आज वस्ती पंजाब के उम्मीदवारों का ऐलान भी किया जा सकता है। 1970 साबिक सदर को इंतखाबात की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी और सीट एडजस्टमेंट से मुतालिक कुछ मजीद अहम मामलात हैं जो कि इजलास में ज़ेरे गौर आएंगे। जरा इजलास जो जलसों के शेड्यूल से मुतालिक भी बातचीत की जाएगी। इलेक्शन 2018 के लिए तैयारियां अरूज पर। दीनी जमातों का इत्तेहाद MMA आज पेशावर से इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। रिंग रोड पर पंडाल सजा दिया गया है। जलसे के लिए तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। जलसे से मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। आपको बताते चलें कि दीनी जमातों का इत्तेहाद MMA आज पेशावर से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करने जा रहा है। रिंग रोड पर पंडाल सजाया गया है। जलसे के लिए तैयारियां भी जोरों शोर से जारी हैं। इस जलसे से मौलाना फजलुर रहमान, सिराजुल हक और दीगर कायदीन खिताब करेंगे। बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक से पहले शामिल कराइट आइंदा माह खला में छोड़ा जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सैटेलाइट को 610 किलोमीटर निज़ाम शमसी से मुताबिकत के साथ मदार में छोड़ा जाएगा। मजीद भी इसकी आपको तफसीलात देंगे। पाक-10 1 सैटेलाइट आइंदा माह खला में छोड़ा जाएगा। नुमाइंदा न्यूज़ मोहम्मद अनस हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। जी आप आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अपने बयान में बताया कि पाकिस्तान ने सैटेलाइट पाक-10 ये सैटेलाइट तैयार कर लिया है, जो कि आइंदा माह खला में छोड़ा जाएगा। ये सैटेलाइट चीन के तवस्सुत से छोड़ा जाएगा खला के अंदर। इस सैटेलाइट का वजन 285 किलोग्राम है और इसको 600 निज़ाम शमसी से दूर मुताबिक के साथ मदार में छोड़ा जाएगा। ये सैटेलाइट मुकामी सैटेलाइट है, जो मुकामी सतह पर सैटेलाइट है, जो कि रिमोट सिग्नलिंग के लिए किया जाएगा और इससे पाकिस्तान की अस्करी हुकाम को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये जोग्राफी खत्ते में भी काम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा। ये इस सैटेलाइट को बनाने का मकसद कतन वॉरहेड के लिए, जंगी वसाइल के लिए नहीं, बल्कि अमन के लिए और पाकिस्तान की जो जोग्राफी सूरत हाल और मौसम
بعد مختلف جو فرٹیلائزر کے کام ہوتے بہت ہیں شکریہ اس آپ میں کا یہ تفصیلات سے آگاہ کیا آپ نے. سورج پھر سے آنکھیں دکھانے لگا، گرمی پھر غضب ڈھانے لگی. پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں تپتے موسم کا راج. موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں اگلے 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خوش رہے گا. تاہم مالاکنڈ، ہزارہ، پشاور، راولپنڈی، اسلام آباد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے. لوڈ شیڈنگ کے بعد عوام اب پانی کی بوند بوند کو بھی ترسنے لگی. راول ڈیم میں پانی کی سطح خطرناک حد تک کم ہو گئی. پانی کے بحران نے راول جھیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. سیر و تفریح کے لیے دور دراز سے آئے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو کر رہ گئے. اسلام آباد سے دیکھتے ہیں آمنہ البلال کی رپورٹ. زمین بوند بوند کو ترستے پنچھی، راول جھیل کی ایسی خشک سالی اسلام آباد والوں نے پہلے کبھی نہ دیکھی نہ سنی. 274 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلی راول جھیل کو خشک سالی نکل گئی. کبھی یہاں حد نگاہ تک نیلا پانی ہوا کرتا تھا، اب بنجر زمین ہے. سیاحوں نے بھی اسلام آباد کے سب سے بڑے تفریحی مقام سے منہ موڑ لیا. لاسٹ ٹائم جب ہم یہاں آئے تھے تو کافی پانی تھا اور کافی تھی وجہ سے ہم نے انجوائے بھی کر سکتے تھے. آج تو کچھ پانی نظر ہی نہیں آ رہا بالکل بھی. ہم ڈیم پر آئے ہیں، راول ڈیم پر، اور ہم نے دیکھا کہ پانی کی بہت کمی ہے. پانی کو ذخیرہ کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے. راول ڈیم کا یہ منظر بتا رہا ہے کہ قدرت یہاں مہربان نہ ہوئی تو آنے والے دنوں میں شہری پینے کے پانی کو بھی ترسیں گے. کیمرامین جاوید اسلم کے ساتھ آمنہ البلال، نیوز اسلام آباد. آپ کو بتائیں کہ پشاور کے N29 پر مختلف سیاسی جماعتوں کے مابین 25 جولائی کو کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت آج تک یہاں کے ووٹرز کا دل نہیں جیت سکی. آج بھی اس حلقے میں عوام بنیادی سہولیات سے محروم ہے. رپورٹ کر رہے ہیں پشاور سے محمد اعجاز آفریدی. N29 پشاور کا سب سے پسماندہ ترین حلقہ حکمرانوں کی عدم توجہ اور ایک اشرے سے زائد عرصے تک دہشت گردی کا نشانہ بنا رہا، جہاں حلقے کے عوام اس جدید دور میں بھی پینے کے پانی، تعلیم اور صحت کے ساتھ ساتھ دیگر بنیادی ضروریات کو ترس رہے ہیں. گزشتہ حکومت نے جو کامیں کی تقریباً 100% میں انہوں نے 70% کامیں کی، اور انشاءاللہ آنے والی حکومت سے بھی مطمئن ہے. جس کا بھی حکومت ہو اس کو چاہیے کہ عوام کی بنیادی حقوق کے لیے کام کرے. ایک کام بھی نہیں کیا تھا پی ٹی والی حکومت ہے نا، نہ پانی ہے، نہ سڑک ہے، نہ راستہ ہے، بس ایک چیز بھی ادھر نہیں ہے، صرف بس ڈول والا کام ہے. یہ دعا کرو اچھا لیڈر مل جائے. اچھا پاکستان کے لیے اچھا لیڈر کا ضرورت ہے، یہی بات ہے. اگر کوئی اچھا لیڈر ملے گا تو سب کچھ ملے گا، سب کچھ ہے ہمارا پاکستان کا. پشاور کے مختلف قومی حلقوں کے بعض علاقوں کو شامل کر کے نئی حلقہ بندیوں میں N29 تشکیل دے دیا گیا ہے. رقبے کے لحاظ سے یہ پشاور کا سب سے بڑا حلقہ ہے. اس حلقے میں احمد خیل، تالار زائی، مقدر زائی، بڑا بیر، بازد خیل، سوڑی زائی، موسیٰ زائی، مریم زائی، زنگلی ازا خیل اور افریدی جیسے بڑے بڑے قبیلے آباد ہیں. دو 2018 کے عام انتخابات میں اس حلقے سے پی ٹی آئی کے ناصر موسیٰ زائی یا شاہ فرمان متحدہ مجلس عمل کے مفتی نعیم، عوامی نیشنل پارٹی ارباب کمال، پیپلز پارٹی کے ازنفر علی خان اور مسلم لیگ نون کے امیر مقام یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. آنے والے عام انتخابات میں اس حلقے کے 213 پولنگ اسٹیشن میں 3 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. ہمارے علاقے میں یہ روڈ بنائے، سب سے بڑا مسئلہ روڈوں کا ہو رہا ہے. ہم تو مسلم لیگ نے پنجاب کو بنا کے دیے، وہ تمہارے کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا ہوئے. پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے چینج لایا کے پی کے میں، اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ عمران خان پورے پاکستان کو انشاءاللہ نیا پاکستان بنائیں گے. یہاں پہ لوگوں کی جو اصل ضروریات یہ نوکریاں ہیں نا، ہمارے لوگ نوکریوں پہ خوش ہوتے ہیں، علاقوں پہ اپنے کام پہ اتنے نہیں خوش ہوتے، ذاتی کاموں پہ خوش ہوتے ہیں. ماضی میں اس حلقے سے ANP، متحدہ مجلس عمل اور پی ٹی آئی کے امیدوار جیت چکے ہیں، لیکن 2018 کے عام انتخابات میں ANP، پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے مابین کانٹے دار مقابلہ متوقع ہیں.
कैमरामैन मोइन अली के साथ मोहम्मद इजाज आफरीदी, नियो न्यूज़ पेशावर। इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत की तरफ से जिलाई और सिटी बल्दियाती इदारों के सरबराहान से इख्तियारात वापस ना लेने जाने पर चेयरमैन जिला कौंसिल और सिटी मेयर आम इंतखाबात में इंतखाबी मुहिम पर असर अंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ सियासी जमातों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। जिला कौंसिल, सिटी मेयर, सूबाई ज़कात कौंसिल, पाकिस्तान बैतुल माल, FWMC समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमों में तैनात लीगी ओहदेदारान अपने अपने अजीजों की इंतखाबी मुहिम चलाने में मसरूफ हैं, लेकिन निगरान हुकूमत की तरफ से अभी तक किसी के इख्तियारात मुअत्तल नहीं किए गए, जिसकी वजह से साफ और शफाफ इलेक्शन के दावे पूरे होते नजर नहीं आते। चेयरमैन जिला कौंसिल ज़ाहद नज़ीर हल्का NA 101 में अपने भाई आसम नज़ीर और हल्का NA 105 में अपने बेटे मसूद नज़ीर की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जबकि सिटी मेयर रज़ाक मलक हल्का PP 110 में अपने भाई नवाज मलक की इंतखाबी मुहिम के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करने में मसरूफ हैं। कैमरामैन साजिद मलक के साथ शौकत वट्टू, नियो फैसलाबाद।